Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and taking care of yourself and your family members by staying at home. Today we will do the MCQs of second chapter. Before I start this video, you stop the video and try to do these MCQs on your own. Then watch the video and check if your answers were correct or not. Let's start from the first MCQ. Study of motion of body is known as heat, light, atomic physics, or mechanics. In mechanics, we study about the motion. Study of motion without the reference of force and motion is called. The branch of physics in which we study about the motion without discussing its effects and causes is known as kinematics. Kinematics is the correct option. If a body does not change its position with respect to some observer, then it will be in state of rest. If a body changes its position with respect to some observer, then it will be in state of rest, motion, uniform motion, or relative motion. The correct option is B, motion. Rest and motion are dash state: absolute, constant, variable, relative. These are relative states. Some of the objects are at rest according to one person, but not according to some other person. Just like the passenger sitting in the bus are at rest with respect to the other passengers on the same bus, but are moving with respect to someone standing outside the bus. So the rest and motion are relative states. Such a type of motion in which every particle of a body has exactly the same motion is known as translatory motion, vibratory motion, rotatory motion, none of these. The correct option is A, translatory motion. When each point of a body moves around a fixed point or axis, then the motion of the body is known as translatory motion, vibratory motion, rotatory motion, और none of these. The correct option is rotatory motion. Rotatory motion में जो है वो एक एक्सिस के अबाउट सारे पॉइंट्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं. When a body moves to and fro about a point and repeats its motion again and again about the same point, then this motion is known as translatory motion, vibratory motion, rotatory motion, none of these. This motion is known as vibratory motion. The motion of a string of a violin is translatory motion, vibratory, rotatory, none of these. The correct option is vibratory motion. Total length between 2 points is known as velocity, acceleration, speed, the distance. The correct option is distance. ये डेफिनेशन गिवन है आपको डिस्टेंस की. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और डिस्टेंस. द करेक्ट ऑप्शन इज डिस्प्लेसमेंट, बी. द distance and direction of a body from a fixed point shows its velocity, acceleration, speed, displacement. Velocity. Next MCQ. The SI unit of speed is meter per second, meter per hour, kilometer per second, all of these. The correct option is A, meter per second. Speed is a dash quantity. Vector, scalar, both, none of these. Speed is a scalar quantity. If a body covers equal distance in equal interval of time, however small the interval may be, then the speed of body is known as if the body cover. अभी आपको डेफिनेशन गिवन है. इसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑल ऑफ दीज. यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड विल बी यूनिफॉर्म. द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. द करेक्ट ऑप्शन इज velocity. If the speed and direction of the moving body does not change with time, then its velocity is said to be constant. Uniform, variable, constant, all of these. Constant. If the speed or direction of moving body changes with time, then its velocity is said to be
17 का यूनिफॉर्म है, आपको ये यूनिफॉर्म की डेफिनेशन गिवन है। इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में क्या होता है कि डायरेक्शन और स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंजेस विद टाइम देन इट्स वेलोसिटी इज नोन एज वेरिएबल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज rate of change of velocity is known as acceleration. If the velocity of the body is increased then its acceleration will be पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, यूनिफॉर्म होगी या वेरिएबल होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ डिक्रीजिंग देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म, वेरिएबल। डिक्रीजिंग वेलोसिटी के केस में हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, डिसेलरेशन होता है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ यूनिफॉर्म देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी, अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो। एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस ही नहीं होगी क्योंकि चेंजिंग वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। If the velocity of the body changes equally in equal interval of time then its acceleration will be, अगर किसी चीज़ की velocity जो है change हो equal interval of time में तो हम कहेंगे कि उसको acceleration जो है वो uniform है। The velocity of acceleration of a body with uniform speed in a circular path will be, okay, हाँ जी, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई वेलोसिटी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होगी, क्या उनकी जो है वो पाथ होगा। इन द सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे। इन द अपोजिट डायरेक्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इक्वल, दे मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट के जो है वो होगी डायरेक्शन में, जबकि एक्सेलरेशन की वैल्यू आउटवर्ड द सर्कल होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज इन सेम डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन विल बी, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो एक्सेलरेशन क्या होगी, यूनिफॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव, यूनिफॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, पॉजिटिव। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो तो हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेंगे। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो और कोई भी व्हीकल वो अपनी वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रहा हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज़ कर रही है। अगर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जो है वो उसकी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डिसेलरेशन है, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव होगी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। So the correct option of this MCQ number 27 is C. The quantity which can be described by number with suitable unit only is called scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन गिवन है। उसके बाद 29 में अगर हम किसी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना हो मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन के साथ तो वो क्वांटिटी क्या होगी, स्केलर, वेक्टर, स्पीड, एक्सेलरेशन, द वेक्टर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, वेक्टर। इन इक्वेशन ऑफ मोशन विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग सर्कुलर, स्ट्रेट, एलिप्टिकल, नन ऑफ अबव। इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ग्राफ हमने ड्रा किया था उसमें हमने मोशन के बारे में बताया तो वो एक स्ट्रेट लाइन थी। ठीक, स्ट्रेट लाइन। इन इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी यूनिफॉर्म, वेरिएबल, पॉजिटिव, नेगेटिव। यूनिफॉर्म, हमेशा हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। इन इक्वेशन ऑफ मोशन इनिशियल वेलोसिटी विल बी टेकन एज यूनिफॉर्म, वेरिएबल, पॉजिटिव, नेगेटिव। 32 का करेक्ट ऑप्शन है सी, पॉजिटिव। हम वी आई को हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे। इन इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटिटीज़ इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर
taken as uniform, variable, positive, negative. इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज़ हम लेंगे उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे. इन इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटिटी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज. इनिशियल ऑफ वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में हम जो भी क्वांटिटीज़ लेंगे वो क्या होंगी, डी नेगेटिव. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव होगी हमेशा. इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव लेने का मतलब है कि उसकी वो इंक्रीज़ हो रही हो या फिर ज़ीरो पे हो. जबकि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू ली थी. अगर आपको याद हो तो वाई एक्सिस पे हमने ज़ीरो से ग्राफ स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट किया था. तो इनिशियल वेलोसिटी की कोई ना कोई ग्राफ में वैल्यू थी एक नंबर के साथ, तो और वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे थी. तो पॉजिटिव वेलोसिटीज़ हमने ली थी. और उस इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो भी हम वैल्यू लेंगे वो यकीनन नेगेटिव ही होगी. विच इज़ नॉट द वैल्यू ऑफ जी इन एसआई यूनिट एट सी लेवल. इनमें से कौन सी चीज़ जो है वैल्यू ऑफ जी नहीं है ऐसा यूनिट में सी लेवल की. MCQ नंबर 35, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 32 फुट्स पर सेकेंड स्क्वायर. ऑल ऑफ दैम. द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ दैम. ये एक ही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसको ही मुख्तलिफ यूनिट्स इसके चेंज किए गए हैं. चेंज करने से जो है वो ये सारी वैल्यूज़ आती हैं. इसके प्रीफिक्सेस चेंज किए गए हैं. तो ऑल ऑफ अबव. सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन फ्री फॉल ऑफ हैवी बॉडीज वाज परफॉर्म्ड बाय न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो और अल-कुंडी. द करेक्ट ऑप्शन इज गैलीलियो. When a body is falling freely under the gravity, then in equation of motion A is replaced by. अगर freely fall कर रहा हो तो हम acceleration A को change कर देंगे gravitational acceleration G में. तो इसके लिए M, D, S और G. The correct option is D. If a body is falling under the gravity, then its initial velocity will be. अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी. द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ज़ीरो. इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि फ्रीली फॉल करने पे वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होगा फॉल करने से पहले. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि वहाँ पे वो रेस्ट पे होगा. इफ़ अ बॉडी इज़ फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, देन इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. द करेक्ट ऑप्शन इज़ पॉजिटिव क्योंकि फ्रीली फॉल फील्ड की डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन हो तो हम उसको कहेंगे कि वो पॉजिटिव है. और फील्ड की डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है तो उसकी तो और बॉडी भी टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव होगा. इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है लेकिन मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, सो द डायरेक्शन विल बी नेगेटिव. A ball is dropped from the top of the tower. The distance covered by it in the first second is 42 MCQ है और उसका करेक्ट ऑप्शन है 5 मीटर. A ball is dropped from the top of the tower. The distance covered by it in the first second. टाइम आपको गिवन है फर्स्ट सेकेंड. आपने देखना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर. टाइम आपको 1 सेकेंड गिवन है, G की वैल्यू आपको पता है, आप वो पुट करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी क्योंकि वो रेस्ट पे था जब उसको फॉल करवाया गया. आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, आप उसमें पुट करेंगे वैल्यू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और इसको सॉल्व करेंगे. 5 मीटर आएगा. इसको सॉल्व करें. अगर आपसे आपका आंसर 5 मीटर नहीं आता तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे. इफ़ अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल, देन इट्स वेलोसिटी विल बी. अगर कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कल में तो उसकी वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म, वेरिएबल, ज़ीरो, नन ऑफ अबव. उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी. सर्कुलर पाथ में उसकी वेलोसिटी वेरिएबल क्यों होगी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. स्पीड बेशक यूनिफॉर्म रह रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए हम उसकी वेलोसिटी को वेरिएबल कहेंगे. देयर आर डैश इक्वेशन ऑफ मोशन विच आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है.
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ओके क्लास फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।